In today's class, we will learn about naming of oxo acids. So first of all, we have to understand what is the meaning of that oxo acids. So when any known metal like sulfur, nitrogen, phosphorus, chlorine, etc., these known metals make bond with oxygen as well as with hydrogen. Then and these compound behave like as a acids because they can donate their H plus ion in aqueous solution. So that is called as oxo acids. For example, H2SO4 is the oxo acid of sulfur. H3PO4 that is the oxo acid of phosphorus. HClO3 that is the oxo acid of Cl, as well as HNO3 that is the oxo acid of nitrogen. Similarly, we can say H2CO3 that is the oxo acid of carbon, and H3BO3 that is the oxo acid of boron. So when any known metal make bond with OH and this H plus ion can donate in aqueous solution as a H plus ion, then that acids are known as oxo acids. So we have to learn the naming of oxo acids, like when we have to use hypo, when we have to use ortho, when we have to use meta, etc. So let's understand the naming. First of all, we have to understand the main oxo acid of any element is in ic form. Ic form means like H3PO4. H3PO4 is called as phosphoric acid. Similarly, we can say H2SO4 is called as sulfuric acid, as well as HClO3 is called as chloric acid. HNO3 that is known as nitric acid. H2CO3 carbonic acid. H3BO3 is boric acid. So main oxo acids are found in ic form. Ic form. So we have to learn the naming as the main compound like ic. Ic means, suppose we are taking the example of phosphorus. So when we are taking the example of phosphorus, its ic form is known as phosphoric acid. So H3PO4 is the formula of phosphoric acid. So when we remove one oxygen from ic form, then it gets converted into us form. For example, H3PO4 is the formula of phosphoric acid, and when we remove one oxygen atom, then it convert into H3PO3, that is called phosphorus acid. So जब हम इक फॉर्म में से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव कर देते हैं तो वो अस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोरिक एसिड जो होगा उसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन एटम रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा H3PO3। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस एसिड। अब देखिए, अगर हम हमारा जो H3PO4 है उसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उन दो मॉलिक्यूल्स में से एक H2O रिमूव कर देते हैं, दो मॉलिक्यूल्स में से हम एक H2O रिमूव करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड पायरोफोम। सपोज H3PO4, इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे तो वो कितना होगा, H6P2O8 होगा। उसमें से हम एक H2O रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा H4P2O7. So that is called pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. करेक्ट। सिमिलरली हमारे पास जो फॉस्फोरस एसिड था उसकी भी हम पायरोफोम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वी हैव टू रिमूव वन H2O फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड। सो अगर हम फॉस्फोरस एसिड H3PO3 है उसके टू मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, H6P2O6, और उसमें से जब हम एक H2O रिमूव करेंगे देन it will form H4P2O5. So H4P2O5 that is the पायरोफोस्फोरस एसिड। तो पायरो करने के लिए हमें क्या करना होता है, पायरो के लिए हम दो मॉलिक्यूल एसिड के लेते हैं, उनमें से एक H2O रिमूव कर देते हैं। नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मेटा। मेटा में क्या होता है, अगर हम हमारा जो एक मॉलिक्यूल एसिड का यूज करते हैं, देखिए मेटा में हम एक मॉलिक्यूल एसिड का यूज करेंगे, उसमें से एक H2O को रिमूव करते हैं। वन मॉलिक्यूल एसिड में से अगर आप वन H2O रिमूव करेंगे देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मेटा फॉर्म। फॉर एग्जांपल वी हैव H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से एक मॉलिक्यूल्स में से एक H2O रिमूव कर दिया तो हमें मिला HPO3। HPO3, so that is meta phosphoric acid, because meta form is as a polymeric form, polymers की form में होता है, that's why we have to enclose HPO3 in square bracket and put N। N means बहुत सारे molecules हैं because ये polymers की form में होता है, so that is called
मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह अगर हमें मेटा फॉस्फोरस एसिड बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, H3PO3 जो होगा फॉस्फोरस एसिड, उसके एक मॉलिक्यूल्स में से एक H2O को रिमूव कर देंगे। तो देखिए एक मॉलिक्यूल में से जब हम एक H2O रिमूव करेंगे तो H3PO3 माइनस 1H2O, तो क्या बनेगा हमारे पास HPO2। ऑब्वियसली पॉलीमेरिक फॉर्म में है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एन यूज करेंगे, मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सो दैट इज कॉल्ड मेटा फॉस्फोरस एसिड। तो मेटा का मीनिंग क्या हुआ, मेटा के मीनिंग हुआ एक मॉलिक्यूल एसिड में से एक H2O हमें रिमूव करना है। पायरो का मीनिंग हुआ हमें दो मॉलिक्यूल में से, एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में से एक H2O रिमूव करना होता है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं फॉस्फोरस एसिड में से, अगर आप एक ऑक्सीजन और रिमूव कर देंगे देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइपोफॉर्म। हाइपोफॉर्म, सो H3PO3 में से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो हमें क्या मिला, H3PO2, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अगर हमें हमारे फॉस्फोरिक एसिड की हाइपोफॉर्म बनानी है तो हमें क्या करना होगा, फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव करना होगा, बट नहीं, बिकॉज अगर आप फॉस्फोरिक एसिड में से एक और रिमूव करते हो देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरस एसिड H3PO3, तो वो तो हमारा हाइपोफॉर्म नहीं हुआ। तो देखिए जब आपको फॉस्फोरिक एसिड की हाइपोफॉर्म बनानी है तो उसे आप किससे बनाओगे, आप उसे बनाओगे किससे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड से। देखिए आपको याद होगा H3PO4 है, इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज करके 1H2 रिमूव करेंगे देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब अगर आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन एटम को रिमूव करेंगे देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए H4P2O7 हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड था, उसमें से हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास H4P2O6, दैट इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है। तो फिर से देखिए हम अगर हमारा जो फॉस्फोरस एसिड है उसमें से एक और रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, H3PO2, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लेकिन अगर हमें हाइपोफॉस्फोरिक बनाना है तो उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करने से बात नहीं बनेगी, बिकॉज वो तो फॉस्फोरस एसिड बना देगा। तो हमें क्या करना होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव करना होगा तो हमें मिलेगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पर और परोक्सो। परोक्सो का मीनिंग होता है इसमें परोक्साइड बॉन्ड होता है एक्चुअल में। तो हम कहते हैं H3PO4 हमारा जो है उसमें अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, यानी एक ऑक्सीजन हम उसमें अगर ऐड कर देते हैं तो वो पर या परोक्सो बन जाता है। तो H3PO4 है, आप एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, H3PO5 बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड पर और परोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। परोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड बिकॉज इसके अंदर परोक्साइड बॉन्ड होता है। अब देखिए जो हमारा H3PO3 होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। इसका एक और बड़ा पॉपुलर नेम है जो कई बार एग्जाम में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फोस्फोनिक एसिड। दैट इज कॉल्ड फॉस्फोनिक एसिड एज वेल एज H3PO2 दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है उसका भी एक इंपॉर्टेंट नेम होता है, दैट इज कॉल्ड फोस्फोनिक एसिड। तो फॉस्फोनिक एसिड का मीनिंग हुआ H3PO3 और फोस्फिनिक एसिड का मीनिंग हुआ H3PO2। तो इस तरह से देखिए हम लोग जो हमारे जो भी हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं उनको हम लोग क्या दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास था HClO3। HClO3 को अगर हम देखें तो हमने इसको क्या कहा था, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। अब देखिए अगर मुझे इससे क्लोरस एसिड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोरिक एसिड से क्लोरस एसिड बनाने के लिए मुझे इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें से एक ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देते हैं देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू HClO2। सो HClO2 दैट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। अगर हमें हाइपोक्लोरस एसिड बनाना है तो क्या करना होगा, हमें एक ऑक्सीजन और रिमूव कर देते हैं। तो इसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन और रिमूव कर देंगे देन दैट इज कॉल्ड HClO। सो दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। इसी तरह देखिए अगर हमारे पास क्लोरिक एसिड था उससे हमें पर क्लोरिक एसिड बनाना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन ऐड करना होगा। तो क्लोरिक एसिड में अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू HClO4। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड।
सिमिलरली अगर हमारे पास सल्फर के एसिड्स, अगर हम ऑक्सो एसिड्स देखें तो हमारे पास होता है H2SO4, जिसका नेम सबको मालूम है, H2SO4, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अब इक से अगर हमें अस में कन्वर्ट करना है तो हमें एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करना होगा। तो अगर हम H2SO4 में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू H2SO3, सो दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। sulfurous acid. So I think you get better understand what is the meaning of hypo, us, ic, as well as pyro, meta, etc. You can revise that all name. These are very important for point of view of NEET as well as JEE. Thank you.